Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 38 practice set of extension education, training and HRD portion which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. First question जो आज का है, which of the following illustrate using result as a criteria for evaluating as a supervisory training program? First option, an interpersonal relations rating scale completed. B option, by the subordinate of each supervisor. B option, 10 item questionnaire asking the supervisor to evaluate the result of the training. C option, a frequency count of how often the supervisor prized or disciplined their subordinate over the next 8 weeks. D option, measure of turnover, productivity improvement and grievances in a supervisor's department. जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, while a trainer was trying to evaluate the effectiveness of a 1 week training program on communication using a pre-test or post-test comparison, an international incident occurred because of a communicational breakdown. This confounding event would create a competing explanation referred to in the experimental literature as. First option, Hawthorne effect. B option, international bias. C option, maturation. डी ऑप्शन, हिस्ट्री. जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन होगा. एज ए कोई भी ट्रेनर है वो ट्राई कर रहा है एवेल्युएट करने का 1 वीक का, या जब जितने भी उसने प्रोग्राम चला उसमें कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो एज वो एनालिसिस जो करेगा हिस्ट्री से. हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री अकर व्हेन पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस एन इवेंट एक्सटर्नल टू बी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दैट अफेक्ट देयर पोस्ट टेस्ट स्कोर्स. तो मतलब एज ए कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है तो हिस्ट्री में एज ए जो लर्नर होता है उसका एवेल्युएट किया जाता है कि उसके पिछले परफॉर्मेंस क्या है तो उसी हिसाब से उसका एवेल्युएट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिसर्च डिजाइन फॉर एवेल्युएटिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम? फर्स्ट ऑप्शन, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन यूजिंग 2 एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप एंड असाइंड as the experimental group and one as the control group. B option, case study. C option, Solomon 4 group design. D, pre-test and post-test comparison using 1 group. जो करेक्ट ऑप्शन है वो C ऑप्शन है, जो कि बेस्ट मेथड है किसी भी ट्रेनिंग में एवेल्युएटिंग प्रोग्राम. सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन जो होता है, द सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन इज ए वे ऑफ अवॉइडिंग सम ऑफ द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द pre-test, post-test, post-test design. The design contains 2 extra control groups which serve to reduce the influence of confounding variable and allow the researcher to test whether the pretest itself has an effect on the subject. तो जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इन द रोल ट्रांजेक्शन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन सेपरेशन रिफर टू. तो कोई एज ए रोल ट्रांजेक्शन प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन में जो सेपरेशन रिफर करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, मैरिटल सेपरेशन. बी ऑप्शन, ऑर्गेनाइजेशनल टर्नओवर. सी ऑप्शन, साइकोलॉजिकली अबैंडनिंग ए फॉर्मर रूल. डी ऑप्शन, चेंजिंग टू ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन. जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन, साइकोलॉजिकली अबैंडनिंग ए फॉर्मर रूल. फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following statement is the best definition of a career? First option, the work related experiences of people who work in professional or technical occupations. B option, the work related experiences of those who work in major corporation. C option, the work related experiences of people who pursue any type of paid employment. D option, the work related experiences of everyone regardless of whether it's paid or non-paid in one ऑर्गेनाइजेशन और मैनी ऑर्गेनाइजेशन. जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन है, जो कि बेस्ट डेफिनेशन है करियर की. डी ऑप्शन है, द वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स पेड और नॉन पेड इन वन ऑर्गेनाइजेशन और मैनी ऑर्गेनाइजेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, सिक्स क्वेश्चन, बीइंग ए मेंटर एंड अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ अदर आर सेंट्रल एक्टिविटीज़ फॉर प्रोफेशनल इन विच स्टेज ऑफ करियर डेवलपमेंट. तो थर्ड स्टेज होती हैं जो कि करियर डेवलपमेंट की होती है. सेवंथ क्वेश्चन आज का, ए डुअल कैरियर फैमिली रिफर टू. फर्स्ट ऑप्शन, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव ए जॉब आउटसाइड द होम.
बी ऑप्शन, द हस्बैंड वर्क ए पार्ट टाइम जॉब इन एडिशन टू ए फुल टाइम जॉब। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव ए जॉब आउटसाइड द होम। 8 क्वेश्चन, द ममी ट्रैक इज डिफाइंड एज, फर्स्ट ऑप्शन, ए कैरियर पथ फॉर वुमेन हु डू नॉट वांट टू वर्क आउटसाइड द होम। बी ऑप्शन, ए कैरियर पथ फॉर वुमेन हु वांट टू बी बोथ mothers and highly successful professionals. C option, a career path for women who are willing to sacrifice promotion for flexible job with less travel so they can more involve in raising their children. D option, a career path for men who raise children while their wives work। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, मम्मी ट्रैक का। ए कैरियर पथ फॉर वुमेन हु आर विलिंग टू सेक्रीफाइस प्रमोशन फॉर फ्लेक्सिबल जॉब विद लेस ट्रेवल सो दे कैन बी मोर इन्वॉल्व इन राइजिंग देयर चिल्ड्रन। तो 9th क्वेश्चन जो आज का, इन डेवलपिंग एन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम विच फैक्टर इन मोस्ट क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन एक्सपर्टाइट असाइनमेंट इन ए फॉरेन कंट्री। फर्स्ट ऑप्शन, इक्वलाइजिंग नेगेटिव टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज। बी ऑप्शन, adoption of spouse and family to be foreign country। C option, providing for security of expatriate in family। D option, read judgment training upon repatriation। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका ये बी ऑप्शन होगा, adoption of the spouse and family to the foreign country। Next question 10, orientation training for new employees is better if, first option, trainees are warm and they will probably not succeed। B option, a mentor or sponsor is assigned to them। C, they are introduced to everyone the first day। D, the entire orientation training is presented the first morning। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन, ए मेंटर और स्पॉन्सर इज असाइंड टू देम। तो ऐसे जो ट्रेनिंग होती है, जो मेंटर होता है उनको असाइन कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा, तो सबसे अच्छा बेस्ट वे होगा वो। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रॉपर रोल ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फर्स्ट ऑप्शन, एम्प्लॉयर शुड ट्रस्ट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म वेल एंड नॉट हैव टू चेक अप ऑन देम। बी ऑप्शन, ओनली दोज एम्प्लॉयज who fail demonstrate that they can be trusted should be evaluated। C option, performance evaluation should be conducted only on manager and used for promotion design। D option, all employees should expect to have their performance evaluated and his information should be used for pay increase and promotion decision। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन, all employees should expect to have their performance evaluated and this information should be used for pay increase and promotion decision। 14th question, when one characteristic about a person, positive or negative strongly influences all other attitude about the person, this is called, first option, latency strictness effect। B option, halo effect। C option, सेंट्रल टेंडेंसी इफेक्ट। डी ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट जो होता है, एम्प्लॉय इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट इन वन एरिया एंड इज देयरफॉर रेटेड हाई इन ऑल कैटेगरी। हैलो और वीकनेस इन वन एरिया रिजल्ट इन ओवरऑल लो रेटिंग हॉर्न। सो हैलो इफेक्ट जो होता है, कोई भी एम्प्लॉय होता है किसी भी सेक्टर में काफ़ी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है और एक आध सेक्टर में वो वीक होता है, तो इसी को हैलो इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द फैक्टर ऑन विच एन एम्प्लॉय इज इवेल्युएटेड आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन, वैलिड कैरेक्टरिस्टिक। बी ऑप्शन, द क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस। सी ऑप्शन, प्रैक्टिकल आइटम। डी ऑप्शन, अनबियास्ड कैरेक्टरिस्टिक। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, द क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस। किसी भी एम्प्लॉय की जो इवेल्युएट किया जाता है वो बी ऑप्शन फैक्टर जो सबसे ज़्यादा एफर्ट करता है वो क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन फ्रीडम फ्रॉम contamination refer to। first option, eliminating subjective impression of supervisor। B, eliminating the influence of external people such as customer or client। C option, eliminating the effect of extraneous factors that are beyond the control of employees। D option, statically adjustment the evaluation to correct for subjectivity and bias। जो correct option है वो C option, eliminating the effect of extraneous factors that are beyond the control of employee। Next question 17,
Categorizing employee into their category of high, medium, and low is an illustration of which performance evaluation procedure? First option classification, B option ranking, C option forced choice, D option partitioning. जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, क्लासिफिकेशन. 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज लीस्ट सब्जेक्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड लेनिएंसी स्ट्रिक्टनेस? फर्स्ट ऑप्शन क्लासिफिकेशन, बी ऑप्शन रैंकिंग, सी ऑप्शन ग्राफिक रेटिंग स्केल, डी ऑप्शन बॉक्स. जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, रैंकिंग. जो रैंकिंग होती है वो सेंट्रल टेंडेंसी और लेनेंसेंसी स्ट्रिक्टनेस को इंक्लूड करती है सब्जेक्ट को प्रॉब्लम. 20 क्वेश्चन, व्हेन डेवलपिंग ए ग्राफिक रेटिंग स्केल द बेस्ट मेथड फॉर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक इज द? फर्स्ट ऑप्शन सर्वे ऑफ वर्क वैल्यूज, बी ऑप्शन बिहेवियरल प्रोफाइल, सी ऑप्शन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, डी ऑप्शन बिहेवियरल नॉमिनेशन मेथड. जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड. द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस appraisal involve identifying and describing specific event or incident where the employee did something really well or something that need improvement. It's technique based on description of event and does not rely on the assignment of rating and ranking, although it is occasionally coupled with a rating type system. Next question, the major difference between a behaviorally and rating scale box and behavior observation scale BOS is that only BARS is a behaviorally based evaluation method. With BOS, the evaluator simply record the frequency of behavior without evaluating it. Only box contain multiple dimension of performance. With BOS, the evaluator use more category of effectiveness. जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन. विद बॉस द evaluator simply record the frequency of behavior without evaluating it. तो बॉस टेक्निक है जिसमें हम विदाउट इवेल्यूएट की कोई भी जो इवेल्युएटर है वो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर लेता है किसी भी एज ए लर्नर की बिहेवियर को. द बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्केल बॉस को बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्केल बोलते हैं. इज एन अप्राइजल मेथड डेट मेजर बिहेवियर ऑफ अगेंस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड आल्सो मेजर द फ्रीक्वेंसी विद देयर अकर. तो बॉस बिहेवियर मेजर ऑब्जर्वेशन स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्फ्रोंटिव appraisal interview that focus on what employees have contributed to the organization is called? First option a behavioral analysis, B option a contribution appraisal, C a stress appraisal, D a terminal interview. जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ए कंट्रीब्यूशन अप्राइजल. आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टडीज एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑन प्रमोशन डिसीजन जनरली कंक्लूड दैट? फर्स्ट ऑप्शन परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इज the single most significant influence on promotion decision. B option performance evaluation are second to company locally and determining promotion. D performance information is essentially overlooked. जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इज essentially overlooked in making promotion decision even though most manager think it is used extensively. So आज के जो 25 क्वेश्चन थे ट्रेनिंग पोर्शन से जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे. सो प्लीज़ जो भी आपके जूनियर हैं जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं JRF SRF की या जो प्रेजेंट टाइम पे अभी आप एग्जाम में अपियर होने वाले हैं आपके सीनियर जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए. जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर लिसनिंग.